I'll come to the direct point, the main essential thing है इसके बारे में कि डॉक्टर आपकी नी में ड्रिल करेगा। जैसे वो निकाला मैं फेंट हो गया था फॉर 10 सेकेंड। 50% मसल मेरा चले गया था पूरे थाई का, तो लेफ्ट थाई ज़्यादा बड़ा लग रहा। जिम में गाइस ये रहा था मेरा 7 to 8 मंथ्स का पूरा पीरियड रहा था, 7 to 8 आवर्स ऑफ एक्सरसाइजेस का इंची टेप। उन्होंने मेरा राइट थाई कंपेयर किया विद लेफ्ट एंड ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड, लिटरली ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड। ही टोल्ड मी इट्स इम्पॉसिबल। So hello everyone, welcome back to channel View Rider Ajay. Today we are here to share a story with you. Here we have Chetan. So इनकी एक इंजरी हुई थी and after that in 2021 he is a cyclist जो इतनी लॉन्ग राइड्स करते हैं और इतनी अच्छी साइकिलिंग कर रहे हैं। हम इससे ये सीख सकते हैं, हमें इससे मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर हमें एक कोई इंजरी हो जाए तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम उस स्पोर्ट को छोड़ दें या हम अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दें। चेतन को इतनी सीरियस इंजरी हुई and after that he is here doing rides of around 150 kilometers, 100 kilometers. So I'm very thankful to Ajay for letting me narrate the entire story, what actually happened through the entire journey which I went through. Also, I want to thank to all the viewers who are viewing this video right now. I hope you get inspired out of it. This particular incident happened in the year 2017. I guess it was the month of October. Before that, I'm gonna tell you that pure anecdotal, true story. It actually happened. So one of our teachers in our school, he came up with an offer to me. Would you like to play for the states? Actually, I was a football player till the time I was in class 12. So उन्होंने मुझे बुलाया regarding football. I gave the trials. I was selected as a defender for the state level. The match was somewhere around the month of October. I don't remember the exact date. Gradually practice start हुआ. Practice generally हमारा school में होता था. So we used to train before going to home during the last period of our school. So one day, I'll come to the direct point. One day, I even remember the date. Yeah, it was 12th October. Practice चल रहा था. I was at the behind as a defender. Suddenly, opponent team का striker था. उसके पास ball था. I was the only one left in the entire squad as a defender. मतलब मैं था पीछे and मेरे अलावा goalkeeper था. And he was approaching towards the goal. I don't know why I truly act foolish. I was in complete hasty speed. काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे था मैं. And as I approached towards the goal or goal post, जितनी स्पीड से मैं आया था, at that very point I made a collision. Or you can say I had a collision. मेरा knee, right knee, pop up हो गया. Or you can say twist हो गया. As soon as I collided with the goalkeeper. So before that incident, पहले कभी इतना pain मैंने endure नहीं किया था लाइफ में, especially in football. That was the very first moment I came across कि हाँ अब मुझे pain हो रही है बहुत ज़्यादा. तो उस समय I was on ground. So one of my teammates, team colleagues encircled me, उठाया मुझे. So as soon as I reached home after that, घर पहुँचा, my right knee was completely पूरा swelling हो गया था और I wasn't able to figure out कि actually हुआ क्या. In my mind, I knew that थोड़ा tiny stuff हुआ होगा and nothing like that. But pain जब हम खेलते तो होता रहता है कभी कभी, काफ़ी ज़्यादा होता है and sometimes हमें क्रैम्प आ जाता है कभी कभी, क्रैम्प आ जाता है and और हम इतना सीरियसली नहीं लेते ना उस बात को कि वैसे भी बॉयज़ तो वैसे भी इतना ध्यान नहीं देते ही नहीं है. I mean अगर हम दोनों ऐसे मतलब बॉयज़ की बात नहीं है, डिबेट स्टार्ट होगी. मैं घर पे था तो there was a lot of swelling. So at that point of time, I wasn't able to figure out कि क्या करना है. But there was one doctor, he was known to me. हम उनके पास गए, I visited him. At that point of time, अभी उस समय उन्होंने एक्सरे लिया of my right knee. And as far as an X-ray was concerned, it only showed that my muscle has been torn, the quad muscle. सिर्फ वो ही torn था and ऐसा कुछ major उनके perspective से लग नहीं रहा था कि कुछ ज़्यादा मेजर डेविस्टेटिंग. बट उन्होंने एक पॉइंट जरूर बोला था कि अगर विद इन 2 वीक्स पेन उतना रहता है कॉन्स्टेंट रहता है तो बेटर टू गो फॉर एन MRI. एंड लेट मी टेल यू, जैसे अक्टूबर में हुआ था, CBSE बोर्ड वो क्वाइट नियर, 1-2 महीने रह गए थे एंड वो भी एक माइंड में था मेरे कि अगर मेजर इंजरी फिर टर्न आउट टू बी मेजर इंजरी कहीं 12 पे इफेक्ट ना आ जाए या मार्क्स पे इफेक्ट ना आ जाए. एज डेज सर पास 10 days हो गया, 11 days, pain constant रहा, नहीं रहा. Then he obviously advised me to go for a MRI. Reports आई till evening. I got the reports and he showed me that after looking at the report, analyze किया उन्होंने कि yeah, it's a case of a surgery. वो point मुझे इतना हिट नहीं किया था
एज कम्पेयर टू जब उन्होंने बोला था कि द पोस्ट सर्जरी would take about nearly roughly 1 year. So that was a game changer for me. And he really emphasized on a particular or a specific point कि इसका जो recovery period is really intense, takes everything out of your body. आपको every single day exercises करनी पड़ेगी to get back in shape. ये point मुझे थोड़ा पहले पता चल गया था कि surgery थोड़ा सा avoid हो सकता है, not too much, but about 5 to 6 months तक हम सर्जरी को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं. सो इन दैट टाइम और इन द मीनवाइल आई कुड हैव गिव माय सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम. तो एक पॉइंट होगा कि हाँ क्लास 12 रिपीट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिंस डॉक्टर ने बोला कि 1 ईयर का आपका सेशन रहेगा टू रिकवर फ्रॉम दी सर्जरी. तो 12th से फिर हो गया था कि 12 स्किप नहीं होगा. पीजीआई एंड सेक्टर 32 में मेरा काफ़ी ज़्यादा विजिटिंग रहता था. उन्होंने मुझे एक एसीएल लिगामेंट के लिए एक ब्रेस रेकमेंड किया था विच कॉस्ट अबाउट 27,000. तो उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल है और यू कैन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस फर्दर डिटोरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्ड करता है, सिक्योर करता है आपके नी को. आप उसको पहनिए एंड यू कैन वॉक अराउंड वेयर एवर यू वांट टू हैंग आउट. उस टाइम पे वॉक करने में मुश्किल आती थी. वॉक करने में क्या रहता था कि लिगामेंट का क्या सीन था अंदर से. लिगामेंट तो टेयर हो चुका है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली एक डिसकनेक्शन है बिटवीन योर टिबिया एंड द फीमर. टू द व्यूअर्स इतना विजिबल नहीं रहता था बट आई कुड फील इट. काफ़ी ज़्यादा वॉबलिंग रहता था अंदर. बड़ा सा वियर्ड सा फीलिंग होता था कि कुछ मूवमेंट हो रहा है अंदर. I cannot put that in words. कुछ लूज हुआ हुआ अंदर से. लूज हुआ हुआ, that's the right thing. कुछ लूज हुआ हुआ है. PGI recommended to have a ACL brace. जो मैंने as I told you, it comes for 27,000. So I bought that. वो use किया, but after that कुछ बात नहीं बना था. So then I shifted to Sector 32. वहाँ पे best doctor है, in my opinion, Dr. Ravi Gupta. He's one of the most phenomenal doctors you will ever come across. He has also treated a lot of Pakistan cricketers international level. Same ACL. अच्छा. उन्होंने उनका भी ट्रीटमेंट किया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डॉली बिंद्रा. वो सुन के तो आई वाज रियली पम्प्ड अप, इंस्पायर्ड दैट सर से ही कराना है मुझे. सो वहाँ पे डेट बुक हो गया था मेरा सर्जरी का आफ्टर 1 month. बाय दैट टाइम आई वाज थ्रू विद माय सीबीएसई बोर्ड. हमने सेम ही दिए होंगे ना. हमने सेम दिए होंगे आई सपोज. इन द ईयर 2018 आई सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई सर्जरी हुआ मेरा. सर्जरी प्रोसेस वाज अबाउट, it took about 3 hours. If you go through the surgical process on YouTube, type ACL surgery, you'll get to know about the ACL process, how it's been done. So I'll come to the direct point, the main essential thing है इसके बारे में कि डॉक्टर आपकी नी में ड्रिल करेगा टू रिमूव द टोन एरिया. टोन हो चुका है ACL ऑलरेडी. तो स्टार्ट कर लेते हैं. एक्सट्रैक्ट द टोन एरिया. तो वाइल द सर्जरी इज बीइंग कंडक्टेड डॉक्टर ये कंपेयर करता है. डॉक्टर को आपके बॉडी का एक पार्ट चाहिए, दैट इज योर टेंडन, दैट इज लोकेटेड नियर योर नी. इन दिस केस इन ACL सर्जरी डॉक्टर के पास 2 ऑप्शन है. पहले केस में तो आपका जो लिगामेंट टोन हो चुका है उसको रिमूव कर देगा. नाउ ही वांट्स टू इमर्ज द न्यू लिगामेंट. आइदर ही विल गो फॉर द हैमस्ट्रिंग और ही विल गो फॉर द पैटला टेंडन. नाउ फॉर द व्यूअर्स, पैटला टेंडन इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड योर नी. ये आप नी देख रहे हैं, इसके पीछे ही लोकेटेड होता है योर पैटला टेंडन. डॉक्टर ये देखता है विच वन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, विच वन इज मच मोर रोबस्ट, जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर नी. तो डॉक्टर इन माई केस डॉक्टर गॉट दी हैमस्ट्रिंग टेंडन एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड वो टेंडन यूज़ किया गया एज माई न्यू ग्राफ्ट. और जो पोस्ट सर्जरी में हुआ है, इनिशियल फर्स्ट सेकेंड 1-2 दिन रहते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दे आर रियली एक्सपीरियंस्ड. वो उनको पता होता है, दे कम अक्रॉस ACL सर्जरी इज सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स इंजरी. तो द सेम वेरी डे नियर अबाउट इवनिंग में वन फिजियोथेरेपिस्ट केम इन. उन्होंने उस समय सर्जरी हो चुका था एंड आई वॉज ऑन बेड. वो आए, मुझे बताया कि जो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपका अभी सर्जरी हुआ है जस्ट एंड इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा. आई मीन मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, इसको पीछे आना पड़ेगा. और आफ्टर सर्जरी इट इज़ इम्पॉसिबल. इतने ज़्यादा आप ग्रेट स्ट्रेस में होते हो कि पीछे आ नहीं सकता हो एकदम से. एंड उस समय जहाँ पे मेरा स्टिचेस लगा था उधर एक ट्यूब लगा हुआ था अंदर बॉडी के अंदर. जो सर्जरी ड्रिलिंग हुई है उसका ब्लड ओवरनाइट निकल जाए बाहर. तो वो स्टिचेस ओपन थे. अच्छा. तो वहाँ पे टाइनी सा एक ट्यूब लगा हुआ था टू एक्सट्रैक्ट ऑल द ब्लड व्हिच केम व्हाइल डूइंग सर्जरी. ये सब लगे हुए में वो कहते बेंड करो इसको. थोड़ा सा बेंड करना था. तो थोड़ा सा बेंड करवाया. कैन नॉट पुट इन वर्ड्स राइट नाउ. इमेजिन कर सकते हैं. इमेजिन कर सकते हैं. वो पेन मुझे उससे ज़्यादा हुआ था जब आई गॉट इंजर्ड. उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो गया. नेक्स्ट लेवल था एंड आई कुडंट इवन एंड्योर इट प्रॉपर्ली. उस समय तो ऐसे जैसे मतलब कुछ
ऐसे एक्सप्रेशन बना के बस कर लिया मैंने, कर लो बस। ज़्यादा शो नहीं करना कि मुझे पेन हो रही है। हाँ That's the identity of a true sportsman here. उस समय तो ज़्यादा कुछ था नहीं, that was a 15 minutes process. Then 24 hours was completed. Next day जब हुआ start, one doctor came and जैसे मैंने बताया वो ट्यूब लगा हुआ था अंदर, उन्होंने रिमूव किया ट्यूब, and while removing tube, that was another level of it. That just came out of nowhere. जैसे वो निकाला मैं फेंट हो गया था for 10 seconds. अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लेवल से या किसी भी ज़्यादातर ये हो जाता है, होता है वैसे अगर, आपका एक लिमिट होता है। हाँ लिमिट होता है। वो जब सरपास हो जाता है देन your body reacts. वो रिएक्शन था कि मेरी बॉडी फेंट हो गई थी जैसे उन्होंने ट्यूब निकाला। उसके बाद कुछ घंटे बाद मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी एट दैट वेरी मोमेंट। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट आए एंड इट कंटिन्यू टिल 2 days। उन्होंने बोला कि अब बेंड करिए, अब पीछे बेंड करिए अपना, क्योंकि ये अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, एज अ स्टैग्नेंट छोड़ दूँ तो वो पीछे नहीं जाएगा। वो सर्जरी में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जैसे तैसे करके पीछे लाना ही है। तो दैट्स वेयर डॉक्टर इज गोना एक्सरसाइज मोस्टली। ये शेड्यूल रहा कि मैं ऐसे ऐसे करता रहा। फर्स्ट और सेकंड डे तो मैं मतलब कर ही नहीं पाया था। अनदर में मुझे फर्स्ट डे जब 24 आवर्स हो गए थे सर्जरी, मुझे वॉक करना स्टार्ट करा दी थी। अच्छा, सो दैट एटलीस्ट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू एटलीस्ट गो टू द वॉशरूम। उन्होंने मुझे इतना लाइबल बना दिया कि एटलीस्ट आई कैन गो टू द वॉशरूम। काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस था वो भी। एंड एज आई टोल्ड यू कि वो बैक वाला बटक सकलाना था, दैट वाज इवन टफर। अनदर इट वाज मच मोर कॉम्प्लेक्स चलना देन तो एक्सपेक्टेड। एक लेग से भी चल सकते हैं थोड़ा बता करके, बट वो इन एज फार ACL इज कंसर्न वो मुश्किल है इनिशियल 1 वीक का। तो आफ्टर 3-4 डेज आई वाज डिस्चार्ज। तो मैं घर पे पहुंचा एंड यहाँ से मेरा सारा फेज स्टार्ट हो गया। जुलाई में सर्जरी हो गया था, इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आई गॉट थ्रू फ्रॉम इट। अगस्त में मुझे एडमिशन लेना था इनटू माय कॉलेज, पर पॉसिबल था नहीं। उस समय लग रहा था कि पॉसिबल होगा, बट ये इम्पॉसिबल हो गया था बाद में। जब मुझे बाद में पता चला इन 15-20 डेज आफ्टर टेकिंग द एडमिशन, इस सर्जरी में यू आल हैव टू स्पेंड अबाउट 7 to 8 hours get back in real shape, because after surgery क्या होता है, as I told you, doctor extracted my hamstring, so it was expected that it's going to affect my entire quad muscle. Every tendon is by far connected to each other. Okay, and हुआ क्या था, and after surgery this right quad ये पूरा shrink हो गया था, काफ़ी मतलब shed off हो गया था मसल से। about 40 to 50% मसल मेरा चले गया था पूरे थाई का। तो वो लेफ्ट थाई ज़्यादा बड़ा लग रहा था, साइज डिफरेंस आ गया। साइज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने बोला इसको इक्वल लेके आना है। अगर आप ये 10-11 महीने के अंदर अंदर ले आए तो वेल एंड गुड, बाद में इट्स गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड। फिर वो यही फेज है बिकॉज देयर इज अ न्यू ग्राफ्ट इन योर नी राइट नाउ। मुझे इनिशियल डेज में रेकमेंड किया था टू स्टार्ट जॉगिंग। मैं 20 डेज के बाद जॉग स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, बहुत स्लो जॉग था, बड़ा ज़्यादा फीबल, अनटाइडी, काफ़ी जर्की था। फिर डॉक्टर ने रेकमेंड किया टू बाय अ जिम साइकिल। डॉक्टर ने रेकमेंड किया एवरी वीक एक रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ। तो एवरी वीक में करता गया एंड एवरी डे आई यूज्ड टू स्पेंड अबाउट 3 hours ऑन जिम साइकिल। मॉर्निंग में हाफ एन आवर करता था, फिर लंच से पहले हाफ एन आवर बनार हो गया, लंच के बाद आफ्टर आई मीन नियर अबाउट इवनिंग में करता था 1 घंटा 2 घंटा हो गया, फिर डिनर से पहले करता था, फिर सोने से पहले करता था। 3 hours का ये था। उस समय शेड्यूल ये था। मेरे कॉलेज में था उस समय, एंड लेट मी टेल यू, मैं 3-4 डेज कॉलेज गया था क्योंकि एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा हो गई थी। अबाउट 7 to 8 hours की एक्सरसाइज थी एंड माई कॉलेज टाइमिंग्स वर लाइक 9 to 4। 5:15 में घर पे आता था, तो वो मैचेबल नहीं हो पा रहा था। आई वॉज ओनली एबल टू सेटिस्फाई दी जिम साइकिल विच ही रिकमेंडेड मी। फिर वही हो पा रहा। देन मैंने एक ड्रॉप लिया 1 year का फॉर माई कॉलेज। तो मैं सिंगल लेग से आई थिंक एक्सटेंशन कहते हैं उसको, एक्सटेंशन, हाँ, जो हम बैठ के करते हैं, उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। तो मैं सिंगल लेग से एक्सटेंशन करता था। तो मैं करता गया, तो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया टू गो फॉर दी हैवी वेट स्क्वाट। तो जिम में गाइस ये रहा था मेरा 7 to 8 months का पूरा पीरियड रहा था, 7 to 8 hours ऑफ एक्सरसाइज। जिम मेरा रादर ऑलमोस्ट 1 year तक गया था एंड मैंने इतना रिगरेसली किया था उसको कि ये तो करना ही है, क्योंकि बिकॉज अब कॉलेज जा चुका है। आई वॉज कम्प्लीटली फ्री, आई कुड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट्स अगेंस्ट माई स्टाइल। आई हैव टू ओवरकम दैट। सेक्टर 32 हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा मेरे विजिटिंग रहते थे। आफ्टर एवरी 1 month जाते रहो चेकअप, बिकॉज उनको देखना पड़ता है कि व्हाट्स द एक्चुअल प्रोग्रेस, अब कितना करना है आपको, अब ये मशीन यूज़ करें आप, अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें। स्ट्रेचिंग तो मैं करता था
7-8 10 महीने में कर ही रहा था बैक पे बटक्स वाले करने वाली। जिम में अलग करता था, जिम और जिम बाइक अलग करता था घर पे। ये टोटल 3 एक्सरसाइज करता था मैं, जो अबाउट 7 to 8 आवर्स की मेरी पूरा टाइम स्लॉट होता था। ड्यूरिंग 8 मंथ मैं विजिट पे गया एंड डॉक्टर ने बोला दिस टाइम यू सीम टू बी रियली फाइन, बेटर फेस शेप में लग रहा है। उसका इंची टेप उन्होंने मेरा राइट थाई कंपेयर किया विद लेफ्ट एंड ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड। Literally he was completely shocked. He told me it's impossible. जो मतलब रिकवरी एक्चुअल में 11th और 12th मंथ में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 2-3 मंथ कोई शॉर्ट पीरियड नहीं होता है। आप देयर नंबर ऑफ डेज 90 डेज 120 डेज बड़ा पीरियड होता है। तो मैंने उसका इतनी जल्दी कॉम्पोजिट कर दिया विद इन 8 मंथ्स। ही वॉज कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड कि मतलब ये कैसे हो गया। तो मुझे उसी टाइम बोल दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया दैट या यू कैन प्ले फुटबॉल नाउ, बिकॉज़ ही वाज रियली इम्प्रेस्ड। डेडिकेशन भी चाहिए इसके लिए। हाँ मतलब आपकी इतनी, आप बचपन से आ रहे हो, वही क्वाड मसल चल रहा है आपके, एकदम से वो श्रिंक हो जाए इतनी ईयर्स पहले का, उसको रीगेन करना। से इसका प्रेशर कॉलेज तो चलो चले गया था, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा तो रहता है ना, बैक ऑफ योर माइंड लगता है कि कॉलेज छूट गया है। हाँ वो फील रहती है फिर। तो मैंने अभी एकदम से फुटबॉल स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा सा नी को सेटल होने दिया मैंने, थोड़ा वॉक मैंने ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, ज़्यादा इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रेपुटेशन जॉगिंग मैंने ज़्यादा बढ़ाया। ACL का मेरा जर्नी रहा है, तो आई डोंट नो वेदर इट्स गोना बी इंस्पिरेशन फॉर यू गाइस और नॉट। क्योंकि जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ इससे, क्योंकि हम अभी थोड़े दिन पहले सुखना लेक पर गए थे और वहाँ पर चेतन ने स्टोरी को डिस्कस किया मेरे से, और मेरे को पहले भी नहीं बताया था कभी। हम राइड पर गए थे पर हमने कभी ये बात शेयर नहीं की। तो उस टाइम मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मैंने कहा ये अपने व्यूअर्स को तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल है कि हम एक हमारी बिल्कुल ही लेग का इतना इंजरी हुई है सीरियस, और उससे देखो आप साइकिलिंग कर रहे हो, 100 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे हो, 150 किलोमीटर, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो वो जैसे जैसे फेज था लाइफ का वो हो चुका है। आई एम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, वी आर ऑन अ बाइक्स नाउ। So this was it for the video. I hope you like it. If you do, then please give it a thumbs up and subscribe to the channel if you are new here. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.